Today we will study as notified in the group regarding the priority sector guidelines, priority sector lendings as the guidelines issued by RBI. Even the guidelines are also issued by the government of India. You will see that recently the guidelines regarding ancillary services in agriculture has also been issued. Further, we will study here concept and some MCQs only which are very important. Other MCQs will be shared in the group if I get enough time to prepare them. Further, the concepts will be enough to clear your exam. You need not to study anything. If you have time, you can study from anywhere, but better you study less number of things but thoroughly so that you shouldn't skip the questions if it is asked from the topic you studied. Okay. A number of categories are there in agriculture, but in priority sector, but we are studying agriculture first. It is the most important topic. Second one will be housing, education, and MSME onwards. Okay, we will study here that what are the relevant topics for especially the generalist officer, and especially in the PO it is important, but it is not of importance in the PO examinations because they do not go through core banking, because the people, PO candidates who are going to attend the examination, they do not have banking experience. But if you are attending as a generalist, the bank always knows that you have enough knowledge of banking and they can ask questions from anywhere. You should study. This is also very much useful for the people who are attending the promotion exam of public sector banks. Huh? This is also useful. Okay, so we shouldn't waste time. Further, one thing I would say that if you are not viewing this video in a full, अगर आप इस वीडियो को फुल में नहीं देख रहे हैं या स्किप करके देख रहे हैं या तेज बहुत फास्ट करके देख रहे हैं विदाउट एनालिसिस, देन डू नॉट सी द वीडियो. आई एडवाइज यू, आई डू नॉट वांट any views from you also. Why? Because it is not going to benefit you in any way. आप शॉर्ट करके देखो कि मैं ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट में बना रहा हूं, आप उसको भी शॉर्ट करके देख रहे हो, 2 मिनट 5 मिनट में वीडियो आप देख रहे हो, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है. बेटर आप इसको मत देखो. हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, दैट इज आल्सो ऑलरेडी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप. You get the PDF, you study yourself, but a number of things you will be a number of questions will be coming into your mind, and you won't be able to answer these questions yourself. Okay, then you again will switch to the video or ask to anyone, and if you get some error in the knowledge, you are the only responsible person. Okay, better we don't spend time much here in the talking, and we will forward to the next, and we will start our study now. Okay, this is about me. Presently I am working as a senior manager in a public sector bank. Earlier I was also as a manager in the public sector bank. Before that, I was an another public sector bank as an XL1 officer. Okay, present I have switched two banks, and if I get chances, I will be switching here and there because yes, progress needs a number of things, and switching is one of them. Okay, this is the channel name Exam 247, which will help you in a number of things. आपको इस चैनल से बहुत सारे, स्पेशली बैंकिंग का तो आप टेंशन छोड़ दीजिए. यू लीव बैंकिंग अप टू एग्जाम जोन, you will get a number of things once you get a study at exam zone. You finalize your study at exam zone, you better be free of your mind regarding the banking awareness. Okay, next we will be studying priority sector. Okay, व्हाट इज ए priority sector lending? You must know, because ये कभी पूछा नहीं गया है कि priority sector क्या है, बट ये priority sector पूछा जा सकता है कि what do you mean by priority sector. कभी पूछा नहीं गया अभी आज तक, कभी भी किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है. देन priority sector lending सिंपली मान लो कि जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, ऐसे पॉलिसीज
बैंक के बैंक के लेंडिंग के लिए या बैंक की ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ऐसे सेक्टर को डिफाइन किया जाए जो सेक्टर नॉट ओनली एज ए कंसर्न विद द जीडीपी बट ए पूरे मास को, ठीक है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को एसोसिएट करता हो और उनको प्रभावित करता हो, उनको अफेक्ट करता हो इन एनी वे, मीन्स इन गुड वे, देन दिस सेक्टर लेंडिंग इज द प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे लोग गरीब है देश में, तो वीकर सेक्शन हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एग्रीकल्चर। अभी लग रहा होगा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है। आप देखो गांव में जो छोटे लेबरर लगाए जाते हैं ना खेत में काम कराने के लिए, आप तेलंगाना वाले तो अच्छी तरह जानते होंगे, वहां पर एग्रीकल्चर है, साउथ में ज्यादा है, यूपी वाले भी जानते होंगे सब। मतलब एग्रीकल्चर तो हर जगह है इंडिया में, तो एवरीवन जो बहुत स्टार्ट में सिटी में रहे हैं और हमेशा से सिटी में ही रह रहे हैं, जिनका गांव से कोई टच नहीं है, वो नहीं जानेंगे। जो गांव के हैं उनको पता होगा कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह लगा हुआ है। ठीक है, एमएसएमई इंटरप्राइजेज मतलब गांव में कोई छोटा मोटा बिजनेस जो कंपनी कर रहा है, चार चार पांच, कंपनी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आपका काम आएगा। ठीक है, ऐसे भी सेक्टर जो हैं जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं, दैट आर प्रियोरिटी सेक्टर। ओके, हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर ये चीजें शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से इन चीजों को सामने लाया गया, हाउ दे चेंज द सीन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ दे वर presumed to put forward before the section before the government. Okay, priority sector lines issued by government of India were last reviewed in okay 2015 में ये priority sector लास्ट रिव्यू हुई थी, इश्यू नहीं हुआ था उस टाइम, रिव्यू किया गया था। उसके बाद 2018 में भी रिव्यू हुआ इसका। ठीक, प्रियोरिटी सेक्टर की फर्स्ट गाइडलाइंस जो थी 1972 में इशू हुई थी। क्यों? क्योंकि 1966 में मोरारजी देसाई थे। ठीक है, देन मोरारजी देसाई जी ने उस टाइम इस चीज को इमेजिन किया, इस चीज का नीड को इमेजिन किया कि इस प्रियोरिटी सेक्टर जो है उसमें क्रेडिट की जरूरत है, वहां पर पैसे चाहिए इनकम जनरेशन के लिए, लोगों को सोशल स्टेटस को ऊपर कराने के लिए। तो 1966 में उनके दिमाग में आया और 1972 में फर्स्ट टाइम ये प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस इशू हुई थी। ठीक है, और कौन सी कमेटी थी ये? डॉक्टर के एस कृष्णा स्वामी कमेटी। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट। प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस के लिए 1972 में इशू हुई थी। और कौन इशू किया था? ठीक है, कौन सी कमेटी इशू थी जिसके बेस पे ये प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस इशू की गई? ठीक है, तो ये था के एस कृष्णा स्वामी। ठीक है, अच्छा, ये क्या, कैसी गाइडलाइन थी ये जो गाइडलाइन इशू आई थी परसेंटेज बेस्ड थी। परसेंटेज बेस्ड मतलब बैंक जितना लोन देगा, वाट एवर अमाउंट ऑफ द लोन द बैंक सैंक्शंस और गिव्स एज अ होल, a particular percentage is fixed so that the amount of such percentage of the credit should be forwarded to the priority sector, means the sector which are most uh, mostly affecting a large section of people. Okay, तो परसेंटेज बेस्ड पहली बार 1972 में क्लासिफिकेशन हुआ। करेक्ट, कौन किया ऐसा? के एस कृष्णा स्वामी। इतना भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं कैटेगरीज अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। क्यों? इसमें यही पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। एग्रीकल्चर लिखा रहेगा, एमएसएमई लिखा रहेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, ये कुछ और उसमें अदर दिया रहेगा, कमर्शियल क्रेडिट या वेंचर फंड, ऐसा कुछ, तो उसमें आप लगा दो कि ये नहीं है। इसको याद कैसे रखोगे? इसके लिए याद रखो, देखो एच, एक वर्ड सबको याद होगा, हिरोशिमा पे बम गिरा था ना, हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है,
तो हम वही बना रहे हैं, एच। एच से हो गया हाउसिंग। अच्छा देखो, दिस इज नॉट द प्रियोरिटी वाइज ऑर्डर। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर फर्स्ट आया है तो इसको फर्स्ट सबसे पहले लोन देना है तो एग्री को देना, कुछ नहीं है। ये जस्ट ऐसे ही स्पेसिफिकली लिख दिए गए, इनका कोई ऑर्डर से मतलब नहीं है। देयर इज नथिंग इन ऑर्डरिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो देन यू कैन प्रियोरिटाइज और अरेंज इट इन एनी मैनर। ठीक है, हाउसिंग। अब ई, एजुकेशन। आर, रिन्यूएबल एनर्जी। ओ, अदर्स। अब हो गया हीरो। ठीक है, अब बचा एस, ई, एम, ए। एजुकेशन हो गया ना, एस एक्सपोर्ट वाला, ई, एस से अब समझ में आया ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई, एम एमएसएमई और ए एग्रीकल्चर। हिरोशिमा। इससे आप पूरा याद रख सकते हो कि कितनी कैटेगरीज हैं। टोटल अगर काउंट करने को हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द टारगेट्स एंड सब टारगेट्स फॉर प्रियोरिटी सेक्टर। प्रियोरिटी सेक्टर में कितना टारगेट है, कितने सब टारगेट हैं। देन वी विल मूव फॉर द डिस्कशन अंडर एग्रीकल्चर। ओके, नाउ a question comes to this: what is the reference date for calculation of achievement of this target? मतलब डेट क्या होगी, उन टारगेट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कैसे, तो ये अभी हम नीचे बता देते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज में है जो टेबल, उसके साथ ही आपको बता देंगे कि डेट का रेफरेंस कैसे लिया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डेट। ठीक है, टारगेट पूरा करने के लिए प्रियोरिटी सेक्टर। फर्दर टारगेट्स एंड सब टारगेट जो है टू बी कंप्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ ए एन बी सी। ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या सी ई ओ बी ई, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रख लो, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, इसमें पूछ लेगा क्या है, ई का मतलब क्या है, ई क्या है। ठीक है, अच्छा इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर कोई बैंक प्रमोशन एग्जाम दे रहा हो, वो भी क्लेरिकल से ऑफिसर का नहीं, स्केल 2 से 3 का या 3 से 4 का, तो इसका मतलब है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए नहीं पूछा जाएगा। कैटेगरीज कौन सी हैं, टोटल प्रियोरिटी सेक्टर का 40% ऑफ एएनबीसी बोला है। जैसे अगर आपका टोटल नेट बैंक क्रेडिट है 100 रुपया, उसमें से आप 40 रुपीज पीआरटी सेक्टर को लेंड करेंगे और 60 रुपीज आप कहीं भी लेंड कर सकते हो या कमर्शियली लेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेटर आप क्रेडिट बना सकते हो, बैंक गारंटी, हालांकि इसमें फंड यूज नहीं होता है बट भी कंटीजेंट फंड रहता है, कभी भी अराइज हो सकता है। ठीक है, या कमर्शियल वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट जो 40 रुपीज है वो आपको अपनी तरफ से प्रियोरिटी सेक्टर को लेंड करना है, वो प्रियोरिटी सेक्टर के पास जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें कैटेगरी क्या, किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। इसमें देखो दो कैटेगरी है। अगर कोई फॉरेन बैंक है तो भी उसके ऊपर प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस लगती हैं, बशर्ते गिवन दैट, कंडीशनली दैट द ब्रांचेस ऑफ दैट फॉरेन सेक्टर बैंक, दैट इज अ फॉरेन बैंक, is more than 20. Further, if the branches are less than 20, then also the guidelines are applicable, but the sub-targets are not applicable. जैसे कि अगर ब्रांचेस 20 से कम हैं, तब भी उस पे प्रियोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस लगेगी, उस पे वैलिड होगी, लेकिन जो इसमें कैटेगरी वाइज दिया है कि एग्री को इतना दो, ठीक है, माइक्रो को इतना दो, वो उस पे नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, आरआरबीज के लिए देखो 75% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है।
मतलब अगर रूरल बैंक है कोई और वो 100 रुपए का लोन दे रहा है तो 75 उसको प्रायोरिटी सेक्टर में डालना होगा, 25 वो कमर्शियल लेंडिंग कर सकता है। द सेम इज आल्सो ट्रू फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। आउट ऑफ विच, ठीक है, आउट ऑफ विच मतलब 40% जो लोन देगा, आउट ऑफ विच 18% ऑफ ANBC और COEBE, ठीक है, वो जाना चाहिए एग्री को। मतलब वो 100 रुपए के लोन में जो 40 रुपया वो अलग से निकाल के रखा है उसमें से 18 रुपया तो एग्रीकल्चर को ही चला जाएगा। 18 रुपीज विल गो टू एग्रीकल्चर ओनली विथ a target of 10% is prescribed for small and marginal farmers, SMF। ये इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं अभी आगे के पेज में मैं बताऊंगा, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जा सकता है जनरलिस्ट में भी और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हु आर द व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, माइक्रो इंटरप्राइजेस को आप 7.5% दे सकते हो, ठीक। द सेम इज आल्सो ट्रू फॉर दिस। नेक्स्ट, वीकर सेक्शन को 12% है, ठीक है, बट आरआरबीज और उनके लिए 15% है, ये 15% है, इरेजर दे रहा है, ये 15% है आरआरबीज के लिए, ठीक है, 12% उसके लिए है कौन, जो अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। तो आप देखोगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमर्शियल बैंक इन जो का इनका वीकर सेक्शन का टारगेट सेम है, केवल आरआरबीज में जितना भी वो दे रहे हैं उससे 15% जो है 15% वो वीकर सेक्शन को देंगे। एक नई गाइडलाइन आई है, ये हमने अलग से लिखा हुआ है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, इनको भी 75% का टारगेट दे दिया गया है, लेकिन ये 75% अभी नहीं, ये 2024 तक ये अचीव करना है, ठीक है। अगर अभी आप 2022 में दे रहे हो तो आप ये 50% याद रख लो कि 22 में 50% तक देना है, और ये अचीवमेंट ज्यादातर तो ये पूछता है द टारगेट ऑफ 75% इज टू बी अचीव्ड बाई, तो देन अचीव्ड बाई March 31, 2024। प्रियरिटी सेक्टर लिमिट फॉर आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अभी बता दिया है कि वो चेंज है, इसलिए मैंने रेड में कर दिया है, उसे देख लेना, ठीक है। नोट, नोट क्या है, ऑल डोमेस्टिक बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस, ऐसे ब्रांचेस जो हैं, तो ऐसा नहीं है कि 40% दे दिया और आपका काम खत्म हो गया। इफ आपने पिछले साल 3 सालों में आपने मान लो 50-50% दिया, या किसी साल 50 दिया, किसी साल 60 दिया, आपका टारगेट 40% से ऊपर जा चुका है, देन ये कभी 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। 3 साल के एवरेज से किसी भी साल में, मतलब 3 साल का कितना दिया, 6, 5, 110 एंड 40, तो ये हो गया 150/3, ये हो गया 50। मतलब अभी आपको 40 नहीं, अभी आपको 50 से नीचे नहीं जा सकता, ये गाइडलाइन है कि 40% तो मिनिमम आपको अचीव करना ही है, लेकिन आपका जो 3 साल का लेंडिंग का एवरेज है अगर वो 40% से ज्यादा है तो भी आपको उसको 40% से ज्यादा ही रखना है, वो 40% या उससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक। चलो, वीकर सेक्शन टारगेट फॉर आरआरबी विल बी 15%, ये नोट में लिखे हैं क्योंकि अक्सर क्या करता है, ये बोल देगा वीकर सेक्शन टारगेट फॉर द बैंक इज 12% भी दिया रहेगा, 15% दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आरआरबी के लिए लिखा हो और आप 12% लगा के आओ, ठीक है। तो आप ये याद रख लो, ये 15% है। प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है ये बता देता हूं। जैसे मान लो ये बैंक है, ये बैंक है और एक बैंक ये है, ये है प्राइवेट बैंक और ये है गवर्नमेंट बैंक PSB, अभी जिसमें आप लोग जाने वाले हो और या जिसमें कुछ काम कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ छोटे मोटे लोन बहुत सारे होंगे, SHG के लोन्स होंगे, छोटे बाइक के लोन होंगे, ये होंगे, ठीक है। और इसके पास ज्यादातर क्या होगा, बिजनेसमैन होगा,
30,000 से कम बैलेंस वाले अकाउंट नहीं होंगे, 10,000 तो मिनिमम होगा बैलेंस, यहाँ पर 1 रुपए भी बैलेंस रख सकते हो। इस तरह से प्रियोरिटी सेक्टर का ज्यादातर जो अचीवमेंट है वो गवर्नमेंट बैंक्स ने किया है। एसएचजी दे देंगे, केसीसी, किसी को सुने हो एचडीएफसी से केसीसी लेते हुए? ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बट बहुत कम है। इतना कम है कि आपको उनको वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा भी है, वो प्रॉफिट बेस्ड है, उनका प्रॉफिट मोटिव है, उनका सोशल मोटिव नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट के बैंक हैं तो हमें ये सोशल मोटिव भी ध्यान में रखना है। ठीक है, हम अपना पैसा नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास कोई पैसे की कमी, अगर कैपिटल की कमी पड़ती है गवर्नमेंट हमें देती है, तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए काम कर रही है तो उनको लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। बस ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमसे फ्रॉड ना हो जाए, ताकि हमारी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। ठीक, खतरे में का मतलब कि अब सीधे टर्मिनेट ही कर रहे हैं सभी बैंक्स, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो बेटर पहले ही प्री इंस्पेक्शन पोस्ट इंस्पेक्शन सही से करो। ठीक है, कोई अंदर ग्रीड मत रखो, किसी भी कस्टमर के साथ ज्यादा क्लोज मत हो, दारू शराब सिगरेट उसके साथ मत पियो। तुम्हें बैंक पैसा दे रहे, अपने पैसे खरीद के अगर पीते हो, बहुत ही अग्रेसिव हो इस मामले में, तो पी लो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर मान लो इसने 100 रुपए किया, अच्छा देखो ये इसने लोन कम दिया, ठीक, लेकिन अब ये बताओ इसको भी तो 40% अचीव करना है, ये बैंक तो अचीव कर लिया 60%, और मान लो ये 30% ही किया, तो अभी इसके पास कितने का 10% का गैप है। तो इस बैंक ने 40% से जो ज्यादा इशू किया 20%, अब इसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या? एक तरह से लोन ट्रांसफर जैसा मैकेनिज्म है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इन सबको देगा, ये कहेगा कि 50,000 का जो हमने लोन दिया, मान लो 50,000 ही बोल रहा हूँ, 50 lakhs मान लो, 50 lakhs, इसे तुम ले लो। एक्चुअल में बुक में हमारे ही रहेगा वो, उसके बदले में ये इससे ये सर्टिफिकेट खरीद लेता है। और ये सर्टिफिकेट खरीद लेता है और उसके बदले में इसको रिफाइनेंस मिल जाता है। रिफाइनेंस मतलब, रिफाइनेंस तो नाबार्ड से मिलता है, इसके चक्कर में ये प्रियरिटी सेक्टर के बदले में इसको इंटरेस्ट मिल जाता है, और वही उसकी इनकम होती है। ठीक, और इस बैंक के साथ क्या है कि ये बैंक सेफ रहता है, प्रियरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट खरीद के प्रियरिटी सेक्टर का अचीवमेंट भी हो गया, और इसका लोन भी एनपीए नहीं हुआ। दूसरा, वैलिडिटी क्या है, जितने भी प्रियरिटी सेक्टर इशू होंगे किसी ईयर में, वो अगले ईयर के 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएंगे। चाहे आप अगस्त में खरीदे हो पीएसएल, चाहे आप अप्रैल में खरीदे हो पीएसएल, ये 31 मार्च को अगले साल एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं फार्म क्रेडिट। फार्म क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है इंडिविजुअल फार्मर्स को जो दिया जाता है, इंडिविजुअल फार्मर्स। हालांकि इसमें फार्म क्रेडिट का मतलब है एग्री से, ठीक है, इंडिविजुअल और कारपोरेट भी आ सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बट इंडिविजुअल फार्मर को फार्म क्रेडिट कैसे दिया जाता है, किन को दिया जाता है? फार्म क्रेडिट आप सिंपल बात मान लो किसी को भी दे सकते हो, जिसको खेत नहीं उसको भी दे सकते हो, वो लेकिन खेती का काम कर रहा हो। खेत खरीदने के लिए दे सकते हो, गाय के लिए दे सकते हो, रखने के लिए, गाय भैंस कुछ भी पालता हो, मधुमक्खी पालन के लिए दे सकते हो, रेशम के, मछली, सबके लिए दे सकते हो। और दूसरा चीज, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने केसीसी डेयरी के लिए भी लागू कर दिया है, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, क्रॉप लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स टू नॉन ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल प्लांटेशन। नॉन ट्रेडिशनल मतलब कोई अलग से कोई वेराइटी ला रहा है, वो चीजें ट्रेडिशनल कल्चर में नहीं है, वो चीजें वहां नहीं होती, फिर भी उसको क्रॉप लोन दिया जा सकता। क्रॉप लोन मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जा सकता है, उसे क्रॉप लोन कहना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर किसी किसान ने किसी से पैसा खरीद, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स मतलब सूदखोरी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सूदखोरी, इंग्लिश बोलते हैं यूसरर्स। ठीक है, जो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, ये बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। गांव में अभी भी ऐसा है कि एक बंदा अगर ये पैसे ले लिया ना,
वो 50,000 लिया ना तो उसका 2 लाख वो भर भी चुका होता है और वो 50,000 खत्म नहीं होता। ठीक। तो अगर ऐसे किसी बंदे से पैसा ले लिया है या किसी से भी लिया है, हो सकता है वो इंटरेस्ट ना भी ले रहा हो और वो डिस्ट्रेस्ड है, उसको प्रॉब्लम है, तो आप 1 लाख रुपए तक तो सिंपल वैसे ही दे सकते हो। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, केवाईसी लेके 1 लाख रुपए दे दो, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं। लेकिन अब ये नहीं है कि आप सबको वही डिस्ट्रेस फार्मर बना के सबको बांटने लगो, पैसा पब्लिक का जीरो कर दो बैंक का। ठीक है, ये नहीं करना है। केसीसी लोन दोगे वो फार्म क्रेडिट में आएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन दोगे, ठीक है, अभी बताता हूँ उसका डिफिनेशन। स्मॉल मार्जिनल देखो फिर आ गया SMF, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उसका केस बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि जानना जरूरी है कौन स्मॉल है कौन। हाइपोथिकेशन या प्लेस पे 50 लाख और 75 लाख दे सकते हो। ठीक है। अगर निगोशिएबल वेयर हाउस है तो दे सकते हो, अगर ई मतलब ई निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है तो भी दे सकते हो। ठीक है। निगोशिएबल वेयर हाउस के लिए 75 लाख और ई निगोशिएबल को 50 लाख, लेकिन अभी रिसेंट एक सर्कुलर आया है उसमें ई निगोशिएबल वेयर हाउस का भी लिमिट बढ़ा दिया गया है। लोन्स टू फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, एग्रीकल्चर पंप छोड़ो, सीधे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बना रहे हैं तब भी आप उनको दे सकते हो। ठीक है, सोलर पावर प्लांट ये सब बना रहे हैं तो भी। इसमें और सारी चीजें हैं बट मैंने इतना ही लिखा हुआ है। फार्म क्रेडिट क्या है? कारपोरेट फार्मर्स के लिए, जो कि फार्म क्रेडिट कारपोरेट फार्मर्स मतलब बड़े किसान के लिए, फार्म जो ऑर्गेनाइजेशन बना करके फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसके जो फार्मर्स हैं उनके लिए। उसमें क्या है, 2 करोड़ पर बारोइंग एंटिटी आप लोन दे सकते हो, ये याद रख लो कारपोरेट्स के लिए। 75 लाख और 50 लाख जो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के लिए है वो यहाँ भी वही है। ठीक। लोन्स अप टू 5 करोड़ पर बारोइंग एंटिटी फॉर FPO और FPC। ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको 5 करोड़ पर बारोइंग इंटिटी की बात हो रही है, इंडिविजुअल नहीं बात हो रही, आप ये ध्यान रख लो, ये इंटिटी। कई सारे फार्मर मिलके जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसको लेकर के वो एक एंटिटी कही जाएगी आपकी, और उस पे 5 करोड़ तक का आप दे सकते हो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो ये जरूरी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ पर बारोवर, याद रख लो 100 करोड़। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ पर बारोवर की लिमिट है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं ये देख लो। ठीक है, ये RBI की गाइडलाइंस है जिसके बेस पे आपको स्मॉल मार्जिन, ये RBI ने दिया हुआ है। अगर 1 हेक्टेयर तक का आपको खेत है, फील्ड है, तो मार्जिनल हो जाएगा, और 2 हेक्टेयर तक का है, ठीक है, तो वो स्मॉल कहा जाएगा। ठीक है। अप टू 2 एकर्स। ठीक है, अप टू 2 एकर्स में इक्वल टू भी आता है, ऐसा नहीं कि इसको 1.99 होना चाहिए। कहीं एग्जाम में 1.9 लिखा हो तो उसको मत कर देना, 2 एकर्स हो सकता है। इसका 0 से 1 एकड़, इसका 0 से 2 एकड़, मतलब 0 से 2 तो मत बोलो क्योंकि 0 से 1 में ये वाला भी आ जाएगा, 1 से 2 बोल दो, 1 से 2 एकड़ हो सकता है। ठीक। ये कौन है? स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं, और 2 एकड़ से ज्यादा होगा तो न तो स्मॉल रहेगा न जो है मार्जिनल रहेगा। ठीक है, दैट विल बी ओनली फार्मर, excluding that he is not the small farmer neither the marginal farmer। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स को आप दे सकते हो, SHG को लोन दे सकते हो। ठीक है, JLG तो केवल लोन लेने के लिए ग्रुप बनाया जाता है वो है। ठीक है, इन सबको आप लोन दे सकते हो। ये लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल्स इंगेज इन एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज मतलब
इसमें आपको कोई लैंड होल्डिंग नहीं देखनी है। अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तब भी आप इंडिविजुअल को 2 लाख तक का लोन दे दोगे तो वो प्रियोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसमें 75% से ज्यादा, ठीक है, तो मान लो 12 फार्मर्स हैं, तो इसमें 9 या उससे ज्यादा अगर फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको भी जो लोन दिया जाएगा वो फार्म क्रेडिट में उनको जो लोन दिया जाएगा फार्म क्रेडिट में, दैट विल आल्सो कम अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। लेंडिंग बाय एनबीएफसी, देखो 10 लाख तक पर बारोवर, जो जैसे एनबीएफसी क्या होता है मैं बताता हूँ। एनबीएफसी के पास पैसा कहाँ से आता है? एनबीएफसी क्या करती हैं, मान लो किसी बैंक से लोन लिया 8% पे या 10% पे, अब ये छोटे छोटे बंदों को पकड़ती हैं और इनको लोन देती हैं 12%। 12 तो बहुत कम बताया मैं, 14%, 18%, 22% इसके बेस पे देती हैं, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी बैंक ने किसी एनबीएफसी या ऐसी एंटिटी को लोन दिया है जो आगे जाकर के हर एक आदमी को माइक्रो फाइनेंस करेगी, तो ये 10 लाख तक पर बारोवर, जैसे इसने मान लो इससे 20 लाख रुपया लिया और एक आदमी को 12 लाख दे दिया, एक आदमी को 8 लाख दे दिया, तो ये 8 लाख वाला ही प्रियोरिटी में आएगा, 12 लाख वाला प्रियोरिटी में नहीं आएगा। दूसरा, अगर इसने इस एनबीएफसी ने बैंक से 20 लाख लिया था और उसके बाद एक को 10 लाख दे दिया, एक को 10 लाख दे दिया अपने पास से ऑन लेंडिंग, तो ये दोनों प्रियोरिटी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक। स्पेशली ये है कि आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दूसरे दूसरे फर्दर लेंडिंग के लिए नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए लागू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आगे पढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम केसीसी। वी विल कवर एनपीए गाइडलाइंस ऑफ क्रॉप लोन्स आल्सो, ओके। चलो, हु कैन एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज, कोई भी एक्सटेंड कर सकता है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। पेमेंट बैंक, हाँ, नहीं कर सकते, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कोई नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक दे सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकते हैं, आरआरबीज दे सकते हैं, ठीक है, सब दे सकते हैं। अगर कोई भी बैंक नाम से है तो वो दे सकता है, ठीक। हाँ, नॉन बैंक हो गया तब नहीं देगा भाई। नॉन बैंक, बैंक है तो दे सकता है। जैसे मैंने कहा ना, किसी के साथ बैंक लगा हुआ है तो वो दे देगा, जैसे एन लग गया नॉन बैंक तो वो नहीं दे सकता। स्केल ऑफ फाइनेंस, अब देखो कैसे क्रेडिट लिमिट आती है। जैसे एक चीज होती है स्केल ऑफ फाइनेंस, ये जान लो, ये जरूरी है इंटरव्यू के लिए। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली स्टेट लेवल कमेटी होती है और ये डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, डिसाइड स्टेट लेवल पे होता है। वो हर क्रॉप का पर ईयर का एक्सपेंडिचर पर एकड़ के हिसाब से फिक्स करती है, जैसे 35,000 फिक्स किया, ठीक है। अभी तेलंगाना में 36,000 चल रहा है पैडी का, ठीक। यूपी का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र का भी नहीं पता है अभी मुझे। स्केल ऑफ फाइनेंस आप लोग पता कर लेना, जो ब्रांच में होंगे उनको पता होगा। मैं तेलंगाना का बता रहा हूँ, वहाँ 36,000 अभी पैडी का चल रहा है, 65,000 शायद टर्मरिक का चल रहा है। तो 1 एकड़ अगर आपके पास खेत है और आपने टर्मरिक लगाया हुआ है, 65,000 इंटू 1 = 65,000, दिस विल बी आप, ये एक तो ये हो गया लिमिट। दूसरा क्या होगा, 10% टूवर्ड्स हार्वेस्टिंग, मतलब अभी कह रहे हैं कि इसका जो 10% है मतलब 6,500, ये आपका खर्च होगा हार्वेस्टिंग में। तो मतलब अब आपका कितना हो गया, 65,000 प्लस 6,500, तो ये कितना हो गया, 71,500, ये आपका हो गया। प्लस 20% टुवर्ड्स रिपेयर्स, इसका 20% टुवर्ड्स रिपेयर भी ऐड कर दो इसमें, इसी का 1/5 ऐड कर दो। प्लस अगर कोई इंश्योरेंस कास्ट वो पे करता है ईयरली तो भी ऐड कर दो, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद जो लिमिट आएगी, मान लो
ऐसे सब आपने ऐड किया और आपकी लिमिट आ गई मान लो 1 लाख रुपया। अगर नहीं भी आती तो आप बना सकते हो इंश्योरेंस कास्ट और ये सब जोड़ करके। अब इसका 10% हर ईयर बढ़ाते जाओगे, मतलब 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10, 10, 10, 10, 10, 50,000 है 1 लाख ये। तो इसकी लिमिट आ गई 1,50,000। लेकिन इसको पूरा नहीं देंगे, इसको फर्स्ट ईयर की लिमिट क्या करेंगे, 1,10,000। फर्स्ट ईयर ये पैसा पूरा भर देगा, उसको जीरो पे ले आएगा। अगले साल दोगे 1,20,000, ठीक है। फिर वो पूरा भर देगा, फिर ले आएगा, अगले साल दोगे इसको 1,30,000। समझ में आए? इस तरह से आपको ये 10% इंक्रीमेंटल क्रेडिट लिमिट आप दे सकते हो। और यही जो फिफ्थ ईयर पे आएगी, जो फिफ्थ ईयर आप कैलकुलेट करके ले आओगे, वो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लो। कोलेटरल और मार्जिन क्या होगा क्रॉप लोन में, 1.6 तक नो कोलेटरल। मार्जिन नहीं लिखा है कहीं जीरो, मार्जिन बैंक के ऊपर है। जनरली मार्जिन जीरो बैंक्स ले रहे हैं, ठीक है। 1.6 लाख के ऊपर है तो कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, या गोल्ड रख दो, या खेत को एमओडी कर दो। एमओडी मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैंक के नाम में चढ़वा दो। एलआईसी पॉलिसी रख दो, ठीक है। तो अगर 1,60,000 से ऊपर का केसीसी लिमिट है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक, कि उसके अगेंस्ट में आपको कोई कोलेटरल लेना पड़ेगा। मार्जिन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो मार्जिन बैंक के ऊपर है वो कितना लेता है, ये याद रखो। एग्जाम में क्या पूछेगा अपना समझना, ठीक है। ठीक, अब क्या है, इंटरेस्ट रेट। अच्छा हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, बैंक का रेट मान लो 12% चल रहा है सपोज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है आप केसीसी 7% पे दोगे, तो आपको लॉस हो रहा है 5% का। कोई दिक्कत नहीं, 7% मिल रहा है ना पब्लिक सेक्टर के बैंक को। दूसरा, अगर आपने 1 ईयर के पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो 3% का सबवेंशन इसमें आता था, अभी शायद 2.5% कर दिया गया है। तो 3%, ये नहीं पूछेगा कितने परसेंट इंटर, अगर आता है तो आप लिख देना, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन आता है वो 1 ईयर के अंदर रिन्यू करने वालों का आता है, फिर ये इफेक्टिव रेट 4% हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन इन केसीसी, ठीक। केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, यस, दिया जा सकता है, अभी बताया आपको, इससे ऊपर बता चुका हूँ। मार्जिन इन केसीसी ये पहले अलग से लिख दिया हूँ कि ये आरबीआई कहा है, बैंक को डिसाइड करना है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा, 1,60,000 तक कोई भी सिक्योरिटी मार्जिन, बैंक टू वेव, ठीक है, बैंक टू वेव 1,60,000 तक कोई सिक्योरिटी मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये बैंकों की प्रैक्टिस है। आरबीआई तो अपने मास्टर सर्कुलर में कहा है कि मार्जिन आप ले सकते हो जैसा समझो, लेकिन 1,60,000 तक नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन कितने अमाउंट तक नहीं है, 3 लाख तक। 3 लाख तक है, 3 लाख के ऊपर नहीं है। अगर 3 लाख से प्लस होता है आपका, तो आपको जो इंटरेस्ट सबवेंशन पर ईयर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपने से पढ़ लेना कि जहां पर चार्ज क्रिएशन करना है वहां पर इंश्योर करना है कि चार्ज क्रिएट हो। व्हाट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अच्छा, शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जब तक नहीं समझोगे तब तक केसीसी का एनपीए नहीं समझ में आएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का मतलब होता है कि अगर कोई क्रॉप 1 ईयर के अंदर तैयार हो जाती है, तैयार का मतलब ये हुआ फ्रॉम सोइंग टू गोइंग द हार्वेस्टिंग, टिल द हार्वेस्टिंग। जब से बोया जाता है उसको, जब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, फसल काट ली जाती है, वो पूरा टाइम मिला करके अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आएगा, 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आएगा, ठीक है। एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ केसीसी लोन्स क्या है, केसीसी लोन एनपीए कब होंगे, तो अगर एनपीए होगा अगर वो शॉर्ट टर्म का लोन है,
तो दो क्रॉप सीजन का मतलब दो क्रॉप आपका निकल गया। इस सीजन में दिया, अगला सीजन भी गया, उसके बाद अगला सीजन भी चला गया। मतलब 6 महीने का ये क्रॉप था, तैयार हो जाना था। 0 से 6 महीने कुछ नहीं तैयार भी हुआ, उसने बेच भी लिया, पैसा नहीं दिया अब आपको। तो एक अगला 6 महीना और एक अगला 6 महीना, ये बीतने के बाद ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, तो 1 क्रॉप सीजन, मतलब आपने 1 साल के लिए लोन दिया, 0 से 1 साल हो गया। अगर अगले 1 साल में, मतलब टोटल 2 साल में उसने उसको जीरो नहीं किया, तो वो एनपीए हो जाएगा। अब ये एक हु डिसाइड्स क्रॉप सीजन फॉर बैंक्स, बैंक का और केसीसी पर्पज के लिए क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करता है? तो जो बैंकर्स कमेटी है, ठीक है, द क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप, ठीक है, डिटरमाइंड बाय स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ये आपका केसीसी लोन और केसीसी और क्रॉप लोन प्रियोरिटी सेक्टर का खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपको डिस्कस किए हैं वही आएंगे। सिक्योरिटी मार्जिन आ सकता है, कितने अमाउंट तक कोलेटरल मार्जिन छूट है, ये आ सकता है। तो आप ध्यान रखो, मार्जिन का कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं है। बैंक 1,60,000 तक नहीं ले रहे हैं। अगर 1,60,000 तक है उसमें तो वो लगा देना। स्पेशली आरबीआई की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, मार्जिन का जो है सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी 1.6 तक नहीं लेना है, ठीक। इंटरेस्ट सबवेंशन कितने अमाउंट तक आता है? 3 लाख तक आता है, ठीक। ये करो, ये यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ, बैंकर बनो और अच्छी लाइफ जियो। कुछ लोग तो बैंकर पहले से हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो अभी ऐसे हो, आते ही आपके चेहरे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे से और सीधे ऐसे होना चाहते हो तो मेहनत करो, ठीक है। ये स्माइली आपकी किस्मत की है, ठीक। एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम में जाइए, ग्रुप में जाइए, एडमिन को देखिए, एडमिन जहाँ पे है उसको मैसेज कर दीजिए। नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, आई विल मैसेज यू, आई विल एड यू, ठीक, इन माई कॉन्टेक्ट, ओके। कहीं इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जो लोग, बहुत सारे लोग अभी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो, जब एसबीआई सीबीओ का आया था तो वो कह रहे थे वो सीबीओ स्पेशलिस्ट हैं। अभी महाराष्ट्र का आया है तो बता रहे हैं महाराष्ट्र में का कुछ नहीं होगा। आप आराम से पढ़ाई करो, आप खुद समझ सकते हो कौन सा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस मंथली वाला जरूर पढ़ लेना, कंप्लीट पढ़ लेना। आरबीआई सर्कुलर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है, उसको पढ़ लेना, ये पढ़ लो। अभी आगे हम एजुकेशन और हाउसिंग कंप्लीट करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना पूछ रहा है, आप उसको पढ़ लेना, मैं ग्रुप में भी पढ़ा दूंगा, ठीक। ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको किसी ग्रुप में शेयर मत करना। अगर शेयर भी करना तो पासवर्ड मत प्रोटेक्ट मत शेयर करना, क्योंकि ये अल्टीमेटली ग्रुप के मेंबर्स के लिए है। उनके लिए इतनी रात को इतना काम करके आने के बाद में लगभग 10:30 11 बजे रूम पे आता हूँ, मैं 8 बजे चला जाता हूँ, ठीक है। तो इतना काम करने के आने के बाद अगर मैं मेहनत से बना रहा हूँ तो दिस शुड नॉट बी फ्री। तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ ना इसका, बट इसका यही है कि ये ग्रुप मेंबर्स के लिए है, जो हमारे ग्रुप में हैं, जो यूट्यूब सब्सक्राइब किए हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये उनके लिए है, अदर्स के लिए नहीं है। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय, ये ख़त्म करते हैं और आगे करते हैं। इसको लाइक करो और शेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सबका हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। फिर इसको हम बंद करते हैं और क्विट